Hi everyone, this is CA Shubhi Agarwal and today I'm going to discuss section 44 AD, that is special provision for computing profits and gains of business on presumptive basis. So as the name suggests, it is computing profits and gains on presumptive basis. Here we presume an income and we tax that income. For example, there is a turnover of 1 lakh. So 8%, 8,000 will be the income. तो इस सेक्शन में a sum equal to 8% of total turnover or more as the higher sum shall be claimed to have been earned by the eligible assessee और उसको हम डीम करेंगे as profits and gains of such business chargeable to tax under the head PGBP. Now let's read the section. Notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C. So notwithstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43C, in case of an eligible assessee engaged in eligible business, एक एलिजिबल एसेसी हु इज एंगेज्ड इन द एलिजिबल बिजनेस उसकी बात हो रही है. अ सम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द एसेसी. अ सम इक्वल टू 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स कुछ भी ऑफ द एसेसी इन द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस और एज द केस मे बी अ हायर सम 8% of the total turnover or a higher sum than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profits and gains of such business chargeable to tax under the head PGBP. अब एलिजिबल बिजनेस और एलिजिबल एसेसी की बात कर लेते हैं. कौन होते हैं ये? एलिजिबल एसेसी मीन्स एन इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म. तो इसमें कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म हु इज़ अ रेसिडेंट, जो कि रेसिडेंट है. लेकिन कौन नहीं आते हैं? बट नॉट एन LLP एज डिफाइंड अंडर क्लॉज एन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ऑफ 2009 एंड और कौन आते हैं एलिजिबल एसेसी में? हु हैज़ नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस 10A, 10AA, 10B, 10BA or deduction under any provisions of chapter 6A under the heading C, deduction in respect of certain incomes in the relevant assessment year. तो जिन्होंने who has not claimed deduction, जिन्होंने deduction claim नहीं किया under any of these sections, that is 10A, 10AA, 10B, 10BA or deduction under any of the provisions of chapter 6A under the heading C, deduction in respect of certain incomes in relevant year, तो वो उसमें eligible assessee में आ जाते हैं. तो एक ये हो गए और एक ये हो गए. अब एलिजिबल बिजनेस क्या मतलब होता है इसमें, इस सेक्शन में? एलिजिबल बिजनेस मीन्स एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 AE. कोई भी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44 AE एंड हुज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ 2 crore. अगर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 2 crore. अगर 2 crore से ज़्यादा हो जाएगा तो वो एलिजिबल बिजनेस में नहीं आएगा. तो 2 crore तक ही टर्नओवर हो सकता है. फॉर अवेलिंग दिस सेक्शन 44 AD. नाउ इसके बाद बोलता है प्रोवाइडेड दैट. क्या प्रोवाइडेड दैट है? दिस सबसेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड्स 8% the word 6% has been substituted in respect of the amount of total turnover or gross receipt which is received by an account pay check or an account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through other such electronic mode as may be prescribed during the previous year or before the due date is specified in subsection 1 of section 139 in respect of that year. तो ये subsection shall have effect as if 8% की जगह as if the word 6% has been substituted. किस रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स विच इज़ रिसीव्ड. अगर टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट रिसीव हुआ है बाय एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम through a bank account or through other electronic mode as may be prescribed during the previous year or before the due date is specified in subsection 1 of section 139 in respect of that previous year, तो उसकी जगह 8% की जगह हम 6% यूज़ करेंगे. आगे बोलता है ये सेक्शन एनी डिडक्शन अलाउबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30 to 38 shall for the purpose of section 1 be deemed to have already been given full effect. 2 and no further reduction under these sections shall be allowed. हम ऐसा मानेंगे कि सेक्शन
30 to 38 में जो भी रिडक्शंस मिलते हैं वो ऑलरेडी हैव बीन गिवन इफेक्ट टू, और उसका और कोई फर्दर रिडक्शन हम नहीं अवेल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल रेंट का कोई एक्सपेंस है वो हमें अवेल करना होता है अंडर दीज सेक्शंस, बट अगर हमने ये सेक्शन अवेल किया है 44AD तो हम उसका डिडक्शन नहीं देंगे. The written down value of any asset of an eligible business shall be deemed to have been calculated as if the eligible assessee has claimed and has been actually allowed reduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment year. अगर हमें किसी एसेट का रिटन डाउन वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा मानेंगे कि एलिजिबल एसएससी हैज़ क्लेम्ड, उसने क्लेम कर लिया है एंड एक्चुअली बीन अलाउड डिडक्शन, और उसको डिडक्शन एक्चुअली में दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, सिर्फ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट कैलकुलेट करने के लिए. अगला, वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. अगर कोई एलिजिबल एसएससी है जो डिक्लेयर करता है प्रॉफिट in the previous year in accordance with the provision of this section, that is 8% of the turnover, and he declares 8% या फिर उससे ज़्यादा, and he declares profit for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1. और वो डिक्लेयर करता है क्या, प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन 1. किसी भी 5 ईयर्स में 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर, जो जिस ईयर में हमने ये लगाया है उसके 5 सक्सीडिंग फॉर एनी 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग सच प्रीवियस ईयर, उसके सक्सीडिंग नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1. अगर ऐसा होता है नॉट विच इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 किसी भी 5 साल में, he shall not be eligible to claim benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of this subsection. तो 5 साल तक जिस असेसमेंट ईयर में प्रॉफिट, तो क्या बोलता है ये कि accordance with the provision of subsection 1 he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section. वो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएगा फॉर 5 असेसमेंट ईयर, 5 असेसमेंट ईयर तक सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच, किस ईयर में, सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन. जिस ईयर में इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं डिक्लेयर हुआ है, दैट इज़ 44AD के अकॉर्डिंग नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो 5 साल तक उस ईयर के सब्सिक्वेंट वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन. अब इसको हम दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं. व्हेन एन एसएससी एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 assessment year relevant to the previous year succeeding in the previous year not in accordance with the provisions of this subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment year subsequent to assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं. When an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with provisions of this section. Suppose एक एसएससी है A, उसने 44AD में अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया है एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर. सपोज 2012 में इसने 44AD में डिक्लेयर किया है एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन. अब 5 सक्सीडिंग ईयर्स कितने हो गए, 2013, 2014, 2015, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017. तो ये सक्सीडिंग 5 ईयर्स हो गए. तो for any of the 5 assessment year relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1. सपोज कोई इनमें से किसी एक साल में वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद 44AD डिक्लेयर कर देता है. सपोज हम मान लेते हैं 2015 में वो नॉट इन अकॉर्डेंस विद 44AD अपना टर्नओवर डिक्लेयर कर देता है.
he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year 11 to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1. तो इसके 5 जहाँ पे इसने ऐसा डिक्लेयर किया नॉट इन अकॉर्डेंस विद 44 AD, उसके सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक वो subsequent 5 years तक will not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section. तो 16, 17, 18, 19, 20 तक वो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं क्लेम कर पाएगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नाउ अगला बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन an eligible assessee to whom the provision of subsection 4 are applicable. कोई भी eligible assessee जिस पर ये subsection 4 applicable है and whose total income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax, और उसकी total income exceed करती है maximum amount which is not chargeable to income tax, shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of 44 AA. उसको सब documents रखने पड़ेंगे as required under subsection 2 of 44 AA and get them audited and furnish a report of such audit in as required under section 44 AB. तो इसमें क्या बोलता है 44 AB, the provisions of this section notwithstanding anything contained in the foregoing shall not apply person carrying on the profession. अब इसमें क्या बोलता है इस वाले सबसेक्शन में notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section an eligible assessee to whom the provision of section 4 are applicable, जिस पे section 4 लग गया है and are applicable and whose total turnover exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, और उसका जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, दैट इज़ 2,50,000 से ज़्यादा, शैल बी रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन सच बुक्स एंड अकाउंट्स, उनको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 44 AA एंड गेट देम ऑडिटेड, उनको ऑडिटेड भी कराना पड़ेगा एंड फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AB. अब बोलता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू. अब ये सेक्शन किस पे नहीं लगेगा, पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ 44 AA. जो 44 AA में जो बताया गया है पर्सन हु आर कैरिंग ऑन द प्रोफेशन एज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ 44 AA उन पे नहीं लगेगा. अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, अ पर्सन हु इज अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज उन पे नहीं लगेगा ये सेक्शन. अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस, एक पर्सन जो कैरी ऑन कर रहा है एजेंसी बिजनेस उस पे नहीं लगेगा. For the purpose of this section, eligible assessee means we have already discussed what is eligible assessee and eligible business. So with this we come to end of 44 AD. I hope you like the video. If you like the video, please do hit the like button and click on subscribe. Thank you so much for watching.